Namaskar and good evening and adab. Welcome to the second evening of and the final evening of Poetry and Music, brought to you by Shivaji University, Kolhapur, curated by Aarambh Mumbai Productions. And on technicals, I have Asmat Pathare. Asmat, would you care to reveal yourself? And on backstage, we have Yash Khan. And on artist coordination and backstage, we have Raki Kashyap. So this is a team that is going to bring you a selection of three artists for the evening. Uh, we have vocals and we have two very young and very interesting poets uh, waiting to and we're waiting to present them to you. We're just waiting for more people to join, and as soon as I get a go ahead, we will start with the show. Maybe another 2-3 minutes. We'll just give people time to join in. Um, I'm sitting in Goa right now. और मैं गोवा से बात कर रही हूँ और हमारे जो आर्टिस्ट हैं जमशेदपुर, मुंबई, नथुआ खान उत्तरांचल से लॉग इन कर रहे हैं। कल हमने नरेश सक्सेना जी को सुना और शांतनु हेरलेकर को सुना और ममिता पाल का डांस देखा। This program that has been curated along the lines of this seminar that is happening at the Kolhapur University through the Department of Languages, Foreign Languages, through their initiative. And the themes, when we saw them, were very interesting. And they were on gender and equality and all that is concerning the nation today. So we really thought that we would curate something that would be in line with what is being explored and talked about during the day. So let's begin with the show, and let me not take up more of your time that you reserved for the show. So first up, I would like to invite Srijoni Bhattacharya to sing for us a few bandishes that she has selected, keeping the evening in mind. She's going to sing to us from Khusro and Kabir. She will begin with Kabir and end with Khusro. Interestingly, वो जो भी बंदिशें गा रही हैं, whatever she's going to sing, other than the Kabir bandish, the Khusro bandish has been a part of Aarambh Mumbai's play. ऑल्सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बंदिश गाने वाली है जो वाजिद अली शाह की लिखी हुई है जब उन्होंने लखनऊ छोड़ा था। लखनऊ से जब उनकी रुखसती थी तब उन्होंने ये बंदिश लिखी थी और वो बंदिश आप सभी ने सुनी है मेरे ख्याल से। बहुत ही पॉपुलर है, बाबुल मुरा नई हर छूट हो जाए। ये एक बादशाह का इश्क है अपनी ज़मीन से, अपने वतन से। कल हमने सुना शांतनु ने बहादुर शाह ज़फ़र की एक नज़्म गाई थी, जा सुनियो उनसे कहियो नसीम सहर, और वो भी बहादुर शाह ज़फ़र को जब देश निकाला दे दिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। सो देन ही थॉट ऑफ दिस। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रही हूँ बिकॉज़ आई बिलीव we may have some foreign guests who might be tuning in later to listen to this because it's Department of Foreign Languages. So I'm trying to be bilingual here, but basically वो जो नज़्म थी वो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने हिंदुस्तान के इश्क और उसकी उससे विरह में लिखी थी, उससे जुदा होके लिखी थी। और ये वाजिद अली शाह ने लखनऊ छोड़ते समय जब उन्हें कलकत्ता भेजा गया तब लिखी थी। और दोनों मुसलमान थे और दोनों ही हिंदुस्तान से और अपनी सरजमी से बहुत इश्क करते थे। इतना इश्क जितना इन्वेडर्स हमारे सोने चांदी से करते थे। वो आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। ये मुगल बादशाह आते थे, बसते थे, इस ज़मीं से इश्क करते थे, और जब उन्हें इस ज़मीं से देश निकाला दिया जाता था, तो रोते थे, बिलखते थे और इज़हार करते थे। So let's hear yesterday we heard बहादुर शाह ज़फ़र, आज हम वाजिद अली शाह की बंदिश सुनेंगे श्रीजोनी से। ऑल्सो खुसरो जो भाषा को लेकर जिनको कहा जाता है कि खड़ी बोली की शुरुआत शायद उन्हीं से हुई। द फाउंडर ऑफ व्हाट वी कॉल खड़ी बोली टुडे, इट इज़ अ मिली-जुली भाषा है जिसमें
हिंदुस्तानी जिसको हम आज मानते हैं, लेकिन उसमें कई भाषाओं का हम एक मिलन देखते हैं. We see a combination and a confluence of words from many languages, and it's a very interesting एक साझा विरासत की जो हम बात करते हैं. So it's a very very interesting specimen of the writing which you would experience. Recently आरंभ मुंबई का एक नाटक था जो कि कॉल ऑफ कर दिया गया लखनऊ में, बिकॉज ऐसे खुसरो तो समझ नहीं आएंगे, बहुत ही इलीट या बहुत ही मतलब वो भाषा जो है वो तो हमें समझ ही नहीं आएगी, वो तो मीर खुसरो, डेटेड उर्दू व्हाटएवर. एंड आप सुनिए काहे को ब्याही विदेश, खुसरो का लिखा हुआ है. ऐरी सखी मोरा पिया घर आए, खुसरो का लिखा हुआ. सो भाषा किसी मजहब का इजहार नहीं करती, वो अपने लोगों का, उनके इमोशंस का और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है. And I think that is what Srijuni is trying to conjure up through what she's going to sing today. So we have Srijuni from Jamshedpur signing in. Srijuni is a student of Sri Chandrakant Apte ji and Vidushi Shubha Mutkal ji. She's accompanied on tabla by Sudipta Banerjee ji. And let's hear her. Let's hear Srijuni. Asmita, I would request you to bring in Srijuni. Namaste. Sudipta ji has very gracefully, one of the foremost tabla players of Jamshedpur, has very gracefully agreed to accompany me today. It's a pleasure to be here. I thank you, Purva, for giving us the opportunity to be a part of this. Looking forward to the performances ahead. To begin with, I would like to start with Kabir. This is also a very popular poem, Ghat Ghat Mein Panchi Bolta. So we'd like to begin with that. And इजाजत लेके शुरू कर रही हूँ बिना कुछ ज्यादा बोले. नमस्कार. घट घट में पंछी बोलता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता, घट घट में पंछी बोलता. आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तोल
आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता तोड़ता, आप ही कलियां तोड़ता तोड़ता, खट खट में पंछी बोलता बोलता, खट खट में पंछी बोलता। सब में सब पन, सब में सब पन, सब में सब पन, आप विराजे, सब में सब पन, आप विराजे, जड़ चेतन में ढोलता ढोलता, जड़ चेतन में ढोलता ढोलता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी बोलता बोलता, घट घट में पंछी, घट घट में पंछी, घट घट में पंछी बोलता बोलता। Moving on to, we'll move on to Khusro, and Khusro is also considered to be a huge figure in secularism, because he took elements of both what was Hindi at that point of time, and Urdu, and made a like Purva also talked about it. Yaman Raag की इजाद भी उन्होंने की थी. So Khusro की एक composition एरी सखी, which Purva also mentioned, वो गाया जाता था as a कवाली also. What we are trying to do is, जो बहुत उस्तादों ने किया है, try to convert that and bring a sort of ठुमरी essence to it. So अभी हम वो करने की कोशिश करेंगे, इजाजत लेते हुए. एरे सखे मोरे पिया घर आए, एरे सखे मोरे पिया घर आए, भाग लगे से आंगन को, भाग लगे से आंगन को, पिया घर आए, ए सखे मोरे पिया घर आए, भाग लगे से आगा
सूरतिया अपने पिया की, देख सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मान को, हार गई मैं तन मान को, सखी मोरे पिया घर आए, ए सखी मोरे पिया घर आए। जिसका पिया संग पिया पिया संग पिया, जिसका पिया संग बीते सावन, उस दुल्हन की रैन सुहागन, जिसका पियासा बीते सावन, उस दुल्हन की रैन सुहागन, जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को, आग लगे उस सावन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, आग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धान को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, पिया घर आए, पिया घर आए, पिया So that was Eri Sakhi More Piya Ghar Aaye. Continuing with the theme, going with another one by Kabir. If we talk about Nirgun poetry and Nirgun devotional poetry, Kabir is the foremost. I mean, there are of course other massive names, but Kabir is the most talked about name. So this is another one by him, which talks about and which is very important. It's a very contemporary theme because it talks about finding your God within yourself and finding godliness within yourself. कहाँ ढूंढने जा रहे हो, मंदिर, masjid, that doesn't really matter. Look within yourself and you'll find God, so to speak. So Moko kahan tu dhoonde re bande, again a very popular number. I'm sure a lot of y'all must have heard of it. So करते हैं Moko kahan tu dhoonde re bande. मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे. This particular number was taught to be my Guruji Shrikant Chandrakant Apte. मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे,
मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर, ना मैं मस्जिद, ना मैं देवर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, ना मैं कोनो क्रिया कर्म में, ना मैं कोनो क्रिया कर्म में, नाही योग वैराग में, नाही योग वैराग में, ढूंढी हो तो तुरंत मिले हो, ढूंढी हो तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में, कहत कबीरा, कबीरा, कहत कबीरा, सुनो है साधो, सब सांसों की सांस में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ
रे बंदे, ढूंढे रे बंदे, ढूंढे रे बंदे, ढूंढे रे बंदे. So that was Kabir. And now we move over again to बहुत सुनी हुई राग है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, मतलब जो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, भैरवी. एंड लिखी भी ऐसी हुई है, मतलब लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली राइटिंग है. पूर्वा डिस्कस्ड द होल वाजिद अली शाह वाली स्टोरी, जहाँ पे उन्होंने ये लिखी थी जब उनको लखनऊ से निकलना पड़ा था. And but there's another there's another interpretation to this, Babul Mora Naihar Chuto Jai, which also talks about the soul leaving the body. तो बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए. बाबुल मोरा नैहर छूटो हे जाए. बाबुल मोरा नैहर छूटो हे जाए. बाबुल मोरा नैहर छूटो हे जाए. चार कहार, चार कहार, चार कहार मिल मोरे डोलियां सजा मोरा अपना बेगाना छूटो जाए. मोरा अपना बेगाना छूटो
बाबुल मोरा नैहर छूटो है जजा। अंगना तो भयो देहरी विदे। अंगना तो पर्वत भयो और देहरी विदे। जे बाबुल घर आपना मैं चली पिया के दे। मैं चली पिया के देश। मैं चली पिया के देश। बाबुल मोरा नैहर छूटो 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 है जो। So that was all from us and नमस्कार। इसी के साथ शुभदीप्त जी और मैं हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे एंड थैंक यू क्योंकि हमें भी मौका मिला कि आई एम एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे एंड आई ग्रू अप इन जमशेदपुर। तो हमने हम साथ ही बजाते थे हमेशा। तो बहुत दिनों बाद हमें कोलैबोरेट करने का मौका मिला। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू सृजनी एंड शुदीप्त जी। एंड यहाँ गोवा में बैठ के मुझे लखनऊ की याद आ गई और आंखों में आंसू भी आ गए। यही एक बहुत खूबसूरत बात है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इवनिंग इज दैट आई गेट अ कॉल फ्रॉम कोल्हापुर from Megha Pansare, and she asks me to curate something, and without even thinking about it, कि कैसे होगा, how will we do this, how will we during the lockdown when everybody is locked into there, and maybe not even at the bases, probably traveling or have gone back home from Bombay, how will we put this together? I just accepted that I reach out and first call to most of the artists that we reached out to, that we're associated with as a group. They all responded positively, and that is, I think, the most beautiful thing about the artist community. Also maybe other communities, but definitely artistic community, which doesn't really ask who are the organizers, what are the monies, nothing. They just are happy to put in their breath, जिसको हम प्राण कहते हैं, अपने प्राण, अपनी सांस को वो एक ऐसे काम में डालते हैं जो मोटिव से जुड़ा होता है, जहाँ पे एक साझा विचार है, जहाँ पे हिंदुस्तान का एक साझा नक्शा है, एक साझा एक विचार है. So I think that's a very beautiful thing about the contemporary
India and the young and the senior musicians and artists who are trying to create this the fizza of this country. And that is the most beautiful thing about the evening today, that we have artists. So the next artists who are coming up are Ramneek Singh and Ankita Shah. And Ramneek is from Jammu, Ankita is from Bombay. My association with Ankita was through this very interesting art space that she used to curate in Bombay called the G5A. And she was doing very interesting artistic experiments. And today the table has turned, and she is the artist herself today. And she's a wonderful poet. Ramneek is a wonderful poet. In fact, one of my favorite poets. They're multilingual or rather bilingual. Ramneek writes in Hindi, Ankita writes in English. But when they come together as a team, they create a storm of words, very valid words, very legit words, very, very necessary words that suck you into a vortex of explorations that I think all of us need to be doing today at this juncture where we are or where we have what we have brought upon ourselves. So these are two very young poets of India, very conscientious poets, very, very conscientious. I see them on every mocha. I've seen them on every mocha in Bombay, wherever I have gone to, in fact, organizing or whatever. They are also running an initiative called the Poetry Local, where they archive and document regional poets. And this archive and documentation can be visited at their YouTube channel called the Poetry Local. I love them when they come together, or even when they're speaking independently. Ankita is sitting in Nathua Khan right now, which is in Uttaranchal, freezing cold. Ramnik is in Bombay right now, and they come together to create this storm of words. And let's hear them. I mean, they're beautiful and magical. So I would request Asmit to bring in Ramnik and Ankita. Hi. Hi, everyone. Very, very honored to be here. Thank you to firstly Aarambh Productions, Purva, Asmit, and the entire team who put this event together. I am Ankita. I write poetry in English. I am from Bombay, and a little bit about what I write and why I write. Um, why I write, I think, is fairly simple. It is um, my only sort of weapon to express myself and also understand and comprehend what I see and what I understand of this world. And my poems more recently have been around themes of memory, loss, and all the small things in between. I will be reading um, 3 or 4 short poems today, and without much more, I would just get into the first one is a poem I wrote when I was in Delhi, when I went to Delhi for the first time. And it's a metaphor I picked to express what falling in love means and meant. And this poem is called A Fair Warning. You are Daryaganj, in camaraderie with Wilde and Manto, Kafka and Premchand. You are his final wager at Ballimara, which he has so since won each time Urdu slips into verses of another tongue. You are Agrisen's Bauli, burning bare and empty, quenching its thirst of conversations of lovers it knows will leave. You are the plebeian Indian coffee house atop the princely expanse of Connaught Place that makes delectable omelette toast and debates on politics. You are the pashmina and the momos of Paharganj's Firangi Gali, overpriced and untrue to their promise, yet warm with familiarity. You are the Dilli of weekend vanishing acts from wintry literature festivals and summer trainings. The Dilli I've been warned I won't love as much if I started to live in it. So,
That was my first piece for this evening. Um, my next two poems explore the idea of something that I spend a lot of time thinking about. It's time, it's the passing of time, it's the passing of people that I've loved, and what it all means to the fragments that remain with us in our memories. This poem is called "What Do We Call the Day?" What do we call the day when I climbed, triumphed with little money, but made it to the next morning with food, rest, and all those I loved alive? Or the day when I led the school march, my throat parched, my hands chopping the air, left, right, left? Or when grandfather, with a beady between his fingers, asked, couldn't I score better than second in my class, as if his life and mine depended on it? Or when my father asked if I could get him dhansak from Cafe Military or some tandoori chicken from Joseph's Tandoori Chicken, and I got him both. Or the day when I was 16 and loved back, was yet to know heartbreak, was yet to know there were better ways to hear Rag Jaunpuri from your lover, like, for example, in person. Or the day when I fought for my mother and tears rolled down my face like generations of hand me downs breaking out of a closet. Or when I held my father by his shoulders, walked him to his bed, and he did not die. What do we call the days when we had it all? When we hadn't discovered that minds have crevices and our souls are so used to getting trapped? You know, the days we could quantum leap to go back to? What do we call them? I will write a prayer or a code, whatever helps to find days that are long gone, with no photograph, no epitaph, only abstract artifacts. That was my second poem. And I'll move with that to the third poem. It's called Creases. I dream often of the house I grew up in, with all its rusty details. The attic for preservation reeks of ruins. The kitchen window that cut me a piece of deep magenta skies now peeks at ostriches leaping hysterically at something awful. The bed, which at different years was home to different people, cradles my father. I'm haunted by the ghost of our times, grief with its teeth sunk into the bones. By morning, time works differently. I measure how far we've come by how distorted memories are, and how close is the past by the ripples a meaningless dream makes into my consciousness. The first lesson in origami and memory. The paper straightened out will carry its creases. And this next poem, and the last one in my set for tonight, um, is a poem that I wrote to understand my mother's experience as she was a young woman growing up in Nepal, and um, articulate what kind of a rebellion we both attempted to do much later, um, as in my adulthood and her adulthood. This poem is called Rebel, and here it goes. My mother grew up 5 days a month, confined to a mud house. Here, the first beam of the morning light cut bodies into halves, turned their breaths into its thick, greasy air. Here, days smelt like soap, but could not clean their stained dignity. The nights would bring the hiss of a snake or the measured steps of a ghost, and between the sound of their deep sighs and short breaths morphed into acceptance. All the girls in the neighborhood were exiled here,
when the womb undressed itself of motherhood. When their bodies were teaching them rebellion, the girls grew into women consumed by what this room taught them. My mother learned suffocation and shame together. When she left the mud house, she sprinted far from its narrow walls, from its holy strangulation, to create a home for me where menstruating was as inconspicuous as coming home an hour past midnight, from where every mountain or river could be crossed alone. Here, loving someone meant giving all in. So, this time, when my grandfather visited us from Nepal, told her, as a passing remark pointing to me, if she marries outside our community, I will never step into this house. She laughed, then broke to him that he must prepare for his exile. That's my time. Thank you so much for listening patiently. I'll hand over to Ramneek, who is going to bring some extremely powerful poems to you in Hindi, in Hindustani. Over to you, Ramneek. It's always tough, Ankita, to follow up a great act. Am I audible? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी. सो थैंक यू सो मच पूर्वा और इस अपॉर्चुनिटी के लिए. और अभी अंकिता कविताएं पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रहा था कि ले देख के हमारे पास व्यथा ही बचती है, पेन ही बचती है. हम लोग किसी भी चीज़ को देखकर व्यथित हो जाते हैं. हमको किसी के भी दुख, अपना दुख लगने लग जाता है और इस बात का, हमको इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है. आई थिंक उसी सवाल के जवाब की तलाश में हम लोग परस्पर बार बार लिखते चले जाते हैं, हर चीज़ के बारे में लिखते हैं और उसी को अपना सोल्यूशन मान लेते हैं. एक बार मुझे याद है, मैं एक छोटे से इवेंट में था और मुझसे किसी ने आके पूछा, मैंने कश्मीर के बारे में कविता पढ़ी और किसी ने कहा कि तो सोल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए कश्मीर का. तो मैंने कहा मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ जो देखा वो लिखा. तो आई थिंक एज आर्टिस्ट हम वही करते हैं, हम जो देखते हैं वो लिख सकते हैं. यही हमारी एक, मतलब यही हमारी सीमा है. एनीवे, मेरी पहली कविता जो है इसका शीर्षक है पिछले अगस्त. तो 2016-17 के आसपास कश्मीर में पैलेट गन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. उसी दौरान मैंने एक कविता लिखी थी और जितना नज़दीक से मैंने चीज़ों को देख पाया, उतना ही लिख सका हूँ, उतनी दूर रहकर लिखा है, दूर और पास दोनों ही. तो इस तरह से कविता कि पिछले अगस्त अपने वहाँ खून बहा नहीं, जम गया आंख की पुतलियों में. पिछले अगस्त अपने वहाँ खून बहा नहीं, जम गया आंख की पुतलियों में. चेहरों पर छोटे छोटे दाग आ गए और अमन वाली महामारी की चपेट में तमाम कस्बे. सोफी शाम होते ही बिना दीवार का सहारा लिए नहीं जा पाती है दूसरे कमरे तक, छोटी है, हैंडीकैप शब्द का मतलब नहीं समझती, उसके स्वाभिमान का चोटिल होना अभी बाकी है. लाल चौक में बस्तरबंद गाड़ी, बेकाबू भीड़ के बीच खड़ी बस्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठे नए रंगरूट महावीर का दिल टूट चुका है. उसके सोचे हुए कश्मीर और देखे हुए कश्मीर में बहुत फर्क आ गया है. वो अब नहीं ले आ पाएगा अपने परिवार को दिखाने गुलमर्ग के पहाड़ों पर पड़ती बर्फ. और वो दो भाई जिनके कोच को लगता था कि हो सकते हैं अगले इरफान और यूसुफ, अब सिर्फ दुख करते हैं जब जब सुनते हैं क्रिकेट मैच की आवाज या पढ़ते हैं अगले दिन का अखबार. उनके दादा रोज प्रधानमंत्री को एक खत लिखते हैं, वज़ीर आज़म इतनी बर्बादी का पाप क्यों लेते हैं अपने सर, छोड़ दीजिए. जमीन का टुकड़ा ही तो है, आप परेशान, हम परेशान, लोग परेशान, फौज परेशान. करा देते हैं दो टुकड़े इसके और करा देते हैं पार्सल, आधी जन्नत कराची आधी दिल्ली, और छोड़ देते हैं अवाम को देखने अच्छे दिन कान से. पिछले अगस्त अपने यहाँ उम्मीद की किताब का एक और बरका फाड़ दिया गया जिस पर लिखे जा सकते थे वायदे, दिलाई जा सकती थी तसल्ली के बच्चे नहीं बड़े होंगे बंदूक के साए में, चिनार से गिरते पत्ते नहीं सने होंगे खून से. पर ऐसा नहीं हुआ. पिछले अगस्त अपने वहाँ जो खून बहा वो अपना था. तो ये कविता थी जो उस बैकस्केप से है, बिकॉज क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ तो मुझे लगता है कि वो कहानी की कहनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और दूसरी कविता जो है, वही कविता मैं सुना रहा हूँ, वो उसका नाम है तरक्की. जब मैं बम्बई में रहा 10 साल से, आई बीन लिविंग इन बॉम्बे, बिटवीन बॉम्बे एंड जम्मू. तो बम्बई में रहकर यही देखा, मतलब लोग जो छोटे शहरों या अलग तरह की जगह से अलग तरह की जगह में आते हैं तो उन जो डिस्टोपिया है, जिसको हम लोग डिस्टोपिया कहते हैं, कि शहर को देख कर अचानक से आपको एक मैट्रिक्स दिखता है और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है. और पिछले 2 साल पहले ही
जब आरे के आसपास ये सब चल रहा था कि आरे के जंगल काटे जाएंगे, पेड़ काट दिए जाएंगे, 10,000 पेड़ कट जाएंगे, उसी दौरान मैंने कोशिश की थी अपने हिस्से से कुछ कहने की। तो ये कविता, इसका नाम तरक्की है। कि तरक्की कर रहे देशों में रोज चलती हैं कुल्हाड़ियां, तरक्की कर रहे देशों में रोज चलती हैं कुल्हाड़ियां, कटते पेड़ की छाती से निकलता अगर खून तो उनके कटने पे दुख करना आसान होता, पर खून के अलावा हमारे पास कहाँ है मापदंड चोट का अंदाजा लगाने के। हमने पहन लिए हैं बिना नंबर वाले गोल चश्मे, जिनकी गोलाई जितनी है हमारी उदारता का घेरा, और ब्रह्मांड के वजन और आकार जितना हमारा स्वार्थ। मुझे यकीन है कि संसार के किसी जंगल के किसी पेड़ को हमसे ये उम्मीद तो कतई नहीं है कि हम उन्हें बचा लेंगे। उनके लोकगीत भरे हुए हैं हमारी लालच के किस्सों से। एक बार जंगलों के एक कटते झुंड से एक बच्चा किसी तरह तरक्की के चल रही कुल्हाड़ी की नजरों से बच गया। वो चुपचाप सुलगता बड़ा होता रहा, लगातार इस डर के साथ कि जल्द ही उसके बढ़ते कंधे, चौड़ी होती छाती किसी की आंख में चुभना शुरू हो जाएंगे। उसने देखी है शहर की भूख जो खा गई थी उसके माँ बाप और भाई बहन को भी। उसने सुना है लोगों को बात करते कि आधुनिक भारत के लोगों के लिए चलाई जा रही है मेट्रो, जिसकी सफाई धुलाई के लिए लगेगी जगह, और इसे विश्वास है कि ये काम उसकी कब्र के अलावा कहीं नहीं हो सकता। वो उदास बैठा अब गिनता है दिन, सोचता है दिन भर के कट कर मरना अच्छा के घुट कर, क्योंकि उसके कंधे और कोहनियां जिन पर रहते हैं पंछी, उसके पैर जिन पर रोज कोंपलें देखती हैं अपनी पहली धूप, पाट दिए जाएंगे कंक्रीट से। वैसे भी पक्की सड़क ही तो है हमारे विकास का रास्ता, सड़क जिस पर दौड़ते टैंक जाकर खड़े हो जाते हैं गोला बारूद, जिसके अंदर सड़क जिस पर दौड़ते गोला बारूद से भरे टैंक जाकर खड़े हो जाते हैं पड़ोसियों की तरफ करके मुंह, जिन पर से होकर गुजरती हैं गाड़ियां 2 रुपए में लेकर प्याज किसान से बेचने शहर में 20 का। उसी सड़क पर चलती हैं नेताओं की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जिनके अंदर ना तो बुलेट जा सकती है, ना ही रस्सी से लटकते किसान के मुंह से निकली आखिरी कराह। विकास जरूरी है, पर किस कीमत पर, हमें उससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि बढ़ते तापमान से लड़ने के लिए हमने बना लिए हैं एसी, बढ़ती ठंड से लड़ने के लिए हमने बना ली हैं मोटी रजाइयां। हमारे लिए दुनिया, देश और पृथ्वी हमारे बच्चे और घर के लोग हैं, जो जब रात को सो जाते हैं रजाई ओढ़ के, हमें लगता है दुनिया में हर कोई सो रहा है चैन की नींद। लालच फैलती जा रही है महामारी की तरह, पर हमें यकीन है कि धरती का अंत किसी उल्का पिंड से ही होगा। हमने निभा ली हैं सारी जिम्मेदारियां, मिटा दिए हैं सारे रोग, लड़ाई झगड़े, अब बस कमाने हैं बहुत से पैसे और एक साथ कूच कर जाना है मंगल ग्रह की ओर। कहते हैं ऊंचाई से गिर रहे आदमी की मौत जमीन पर पहुंचने से पहले ही हो जाती है। हम सबको अपनी अपनी हवा मुबारक, और उस हवा में तैर रही अपनी अपनी लाशें। शुक्रिया। ये कविता थी, इसका नाम था तरक्की। और अब मैं और अंकिता एक कविता साथ में पढ़ेंगे अगर हमारे पास समय है तो, जिसका नाम है जी एक सेकंड, हाँ, जिसका नाम है गो बैक टू योर ओन कंट्री। क्योंकि मैं जम्मू से आया तो और ये आई थिंक जब सीरियन माइग्रेशन चालू था, सीरियन कॉन्फ्लिक्ट चालू था, उस समय हम लोगों ने इस कविता पे काम किया था साथ में मिलकर। और ये ज़रूरी इसलिए भी था कि उस समय जो दुनिया के दूसरे हिस्से में हो रहा था, वो मुझे ये याद था कि जब मैं जम्मू में बड़ा हो रहा था तो बहुत सारे कश्मीरी, जब एक्सोडस हुआ तो माइग्रेंट्स जम्मू में आए थे, और उनके साथ माइग्रेशन अपने आप में एक पीड़ा है, पर उसके बाद माइग्रेट होने के बाद जब जहाँ पे आप आके रहते हैं, वो एक अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। जो मेरे जैसे बच्चों ने बड़े होते हुए देखा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब एक तो आप माइग्रेट होके आ गए और जहाँ पे आप आए हैं वहाँ पे भी आप किस तरह के सलूक होता है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट के बाय प्रोडक्ट हैं, ये सब हमारी लालच के बाय प्रोडक्ट हैं। तो इस पीस का नाम है गो बैक टू योर कंट्री, जहाँ पे अंकिता सीरिया कॉन्फ्लिक्ट को अपना केंद्र बिंदु बना के बात कर रही है और मैं कश्मीरी एक्सोडस को। तो इस कविता का शीर्षक है गो बैक टू योर ओन कंट्री। राशन की लंबी लाइन में प्राणनाथ खड़ा रहता है इत्मीनान बांधे, अपनी बारी आने पर फिर से यही सुनने कि राशन खत्म हो गया है कल आना। अच्छे लोग हैं मुंह पर ये नहीं कहते कि तुम्हारे लिए राशन नहीं है, जाओ भूखे मरो। In Aleppo, the schools and hospitals Munir Khaltoum built have reduced to a pile of ruins. His $60,000 a year has plunged to $4,200 from pushing cloth through sewing machines, even though he can do better and build structures about 50 times bigger than what he now lives in. He settles for much less than what he deserves, for he must not steal jobs in a refuge country. ये छे म्योन घर बक्यास त्रावे, ये मेरा घर है, मैं इसे क्यों छोड़ूं। ईशान ने आखिरी बार अपने बाबा के मुंह से यही सुना था। शहर बदल गया, बाबा साथ नहीं आए। उसे इस बात का भी दुख है कि जम्मू में उसे शिकारे नहीं दिखते,
डल के पानी में ढलते सूरज की लंबी सुर्ख लकीर नहीं दिखती। 7-year-old Danya lies mutilated in a hospital bed, several miles away from a home that one night fell like a deck of cards. When the bomb came off the sky, like a disoriented but determined shooting star, the walls came crashing down upon her cousins, uncle, aunt, seconds before their final draw of breath, their failing of hearts. She wants to walk to a home that does not resemble, that does not devour Abu and Ammi. She's terrified. She thinks all walls are about to crumble and all roofs are about to fall. छोटी इंदु ने रोना बंद कर दिया है। न जाने कैसे उसमें इतनी समझ आ गई है, अब घर जाने की जिद नहीं करती, दिन भर दरवाजे पर बैठकर यही सोचती रहती है कि सारे चिनार कहाँ चले गए। Where is home? The atlas shows a spring that has lasted 6 winters, the ice melting, our governments assassinating opinions, our presidential candidates regressing. It shows us in a vast blue ocean of irony, cutting holes in other boats when our own is sinking. पर सरकार ये सरकार वो करते करते हम अपनी नाकामियां भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने भी अपने अपने घरों में एक मुल्क बना रखा है जिसकी सरहदें हैं, जिसके दुश्मन हैं, जिसे खतरा है बाहर के लोगों से। हमने अपनी इंसानियत के दायरे अपनी मकान की चारदीवारी की तरह बहुत छोटे कर दिए हैं। We live in pseudo democracies where we aren't represented by the state is represented by you and me, and we go on pretending, succumbing, adjusting. कितना कुछ है जो हम मान लेते हैं। जानने की कोशिश किए बिना हमको बचपन में सिखाया जाता था कि कोई किसी के हिस्से का दाना नहीं खाता है। फिर कौन है वो लोग जिन्होंने हमारे मन में ये डर बिठा दिया कि कोई हमारी नौकरी ले जाएगा, कोई हमारी जमीन खा जाएगा, वो सब जो हमारा है ही नहीं, उसके लिए हमें हम ही से लड़ा दिया, हमें कोई और बना दिया। Who taught us to draw political maps on the faces of people that enter our countries? Who taught us that there are only 196 kinds of people because there are 196 countries? We're all one earthquake, one civil crisis, short of becoming refugees, and that speaks a lot about the fault lines under our own democracies. And look at our audacity to say, go back to your own country. प्राणनाथ जम्मू के किसी स्कूल में अब बच्चों को यही सिखाता है कि जमीन के नीचे सरहदें नहीं होती, मुल्क नहीं होते, वतन नहीं होते, फिरके नहीं होते, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होते, और जरूरी नहीं है कि इस सब की समझ जमीन के नीचे जाकर ही आए। That was it. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी यही Thank you कविता है। everyone. थैंक यू सो मच, थैंक यू पूर्वा, दैट्स इट। Thank you, Ramneek and Ankita. Thank you for those powerful words. And yeah, I mean, मैं जो बोलना भूल गई थी कि रमनीक की कविता की जो अदायगी है वो मतलब उतनी ही आकर्षित है, मतलब आकर्षित करती है जितना कि उनकी खुद की कविता करती है। किसी ने एक बार बोला भी था कि आप थोड़ा धीमे पढ़ा करिए और मुझे लगा कि नहीं, ये सुझाव बहुत गलत है। रमनीक जिस प्रवाह से पढ़ते हैं वो उनके अंदर का आवेग है, वो हम सबका आवेग है, हम सबके अंदर की उत्कंठा है जिसको वो जाहिर करते हैं। अनंकिता तो उसका उलट देती हैं, वो उतनी ही कामली बोलती हैं लेकिन उनके अंदर का आवेग जो है और हमारे अंदर का जो आवेग है वो और ज्यादा एको हो जाता है। So I think they're great performers as well as great poets, and thank you so much for sharing your time and your words with us today. Moving on to Nivedita, Bhargav, and Varun Gupta. Nivedita is a graduate of NSD. She's an actor, she's a director, she teaches at Whistling Woods International in Bombay. And she has also appeared in Sacred Games, Arya, and 36 Farmhouse, Mr. Svajkai's last film, and many more to come. She also acts with us in our plays and she has a lovely voice. And मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की है आज कि हमारे नाटक जोन का हमारे नाटक का गाना क्या है, वो तो कश्मीर की हर बंदे की जुबान पर है वो गाना। कोशिश उनसे रिक्वेस्ट तो किया, आई होप उन्हें बाज आए। बट निवेदिता वुड बी सिंगिंग टू अस एक बंदिश है जो लेडी संगीत नाम के एक नाटक से है, रसिया को नार बनाओ री। अब बंदिश नाटक की नहीं है, बंदिश तो एवरग्रीन है और शायद कुमार गंधर्व जी ने गाई है।
लेकिन रसिया कुनार बनावरी का कॉम्पोजिशन हरप्रीत और शुभा मुदगल जी की गाइडेंस में हरप्रीत ने ये शायद दोनों ने मिलकर बनाया या नाटक का म्यूजिक दोनों का था, तो साझा उसमें बनाया और निवेदिता उसको गाती हैं और ये बंदिश इसलिए भी मुझे इम्पोर्टेंट लगती है बिकॉज इट talks about diluting the binary between of gender. तो रसिया को नार बनावरी मतलब रसिया के अंदर उस औरत का मन, उसको सिर्फ जैसे कृष्ण को कपड़े पहना दिए जाते थे, गोपियों की तरह सजा दिया जाता था, वो शायद एक फिजिकल मजाक नहीं था, वो शायद एक कोशिश थी कि कृष्ण या जो भी पुरुष हैं, कृष्ण एक सारे पुरुष उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि उनका मन भी स्त्री सा हो और वो भी स्त्री के मन को वैसे ही समझें जैसे रसिया नार बन के समझता है. So रसिया को नार बनावरी, Nivedita is definitely going to present in. She has a couple of other songs to present to us today. Varun Gupta is a song engineer with the National Center for Performing Arts, but also a very talented tabla player. I just love the sound of his tabla, and he plays with us very often. And we're glad to have both of them sharing their time with us and their talent with us. And moving on to Nivedita and Varun. Asmit, please bring them in. नमस्ते, गुड इवनिंग। पूर्वा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और वरुण की तरफ से। आपने इतने अच्छे नाटकों की बात की और थोड़ी देर पहले रमनीक जी और अंकिता जी की कविताएं सुनकर हमने एक्चुअली में सीरियल ऑर्डर थोड़ा-सा गाने का चेंज किया क्योंकि इतना मोटिवेट किया रमनीक जी की कविता ने कि हमने कहा हम सबसे पहले रोशे रोशे अब सुलम्हा ही गाएँगे। ज़ून जो हमारा नाटक है, जो पूर्वा ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। मैं सारे जो अभी आज जो आप नाटकों से जो गाने लिए मैं जो गाऊँगी वो सब पूर्वा नरेश के लिखे हुए हैं और डायरेक्ट किए हुए हैं। तो हम दोनों लखनऊ के हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है और हम दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं और तो मेरे ख़्याल से जब हम दोनों मिलके काम करते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि व्हाटएवर शी राइट्स आई ट्राई टू डू जस्टिस टू दैट। तो आई विल स्टार्ट विद दिस सॉन्ग जो कि दिल के बहुत करीब है हम सबके, सुलहमा, जो कि मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग है लेकिन हम बहुत लोगों ने गाया है तो हमने उसको नाटक में एक थोड़ा-सा उसको इंक्लूड किया और मैं गाती हूँ नाटक में। सुलहमा सुलहमा रोशे रोशे वालों म्या पोशे मदनो सुलहमा सुलहमा रोशे रोशे वालों म्या पोशे मदनो सुलहमा मेरे यार फिर खोई वो बहार मेरे यार फिर खोई वो बहार गुलशन है वीरा बेजार गुलशन है वीरा बेजार प्यारा तिहिंदिस जवान
बस वलोम्या पोषे मदनो सुल्हमा सुल्हमा रोशे रोशे वलोम्या पोषे मदनो सुल्हमा 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 सुल्हमा. So after a song which is very close to all our hearts, our team, हम लोग सब बहुत करीब हैं इस गाने के. हम लोग जून करते हैं, उसके शोज बहुत कम हुए हैं, लेकिन हम लोग इंतजार में रहते हैं कि कब वो नाटक का शो दोबारा होगा, और हम लोग अभी कर रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत अच्छी बात है. तो उसके बाद एक नाटक है बंदिश, जो कि जिसमें मैं मतलब जो कहानी है एक ऐसे समय की, जब एक गाने वाली बाई और जो नौटंकी गाती थी, उनको मतलब जब हमें आज़ादी मिली उस वक़्त एक समा दूसरा था आज़ादी के पहले, जो उनको इज़्ज़त दी जाती थी, जो गाने वालियाँ थीं। लेकिन आज़ादी के बाद उनको बहुत रोड़े आए, मुश्किलें आईं, और ये बाई जो मैं प्ले करती हूँ, बेनी बाई, तो मतलब एक ऐसा सीन है नाटक में जहाँ पे उनको आकाशवाणी, जहाँ पे वो सर उठा के जाया करती थीं, और मतलब बहुत ही उनको इज़्ज़त मिलती थी। उनको ये बोला जाता है कि अब आप जो है अब मेन गेट से नहीं आएँगी, आपका आना-जाना जो है स्टेशन के पिछले गेट से होगा। तो वो चीज़ें एक कलाकार के लिए फ़ेस करना, और हम लोग जब अपना ये कार्यक्रम भी करते हैं, कोई चाहे गाने का हो, चाहे नाटक हो, चाहे डांस का हो, एक कलाकार के लिए इस तरह से बार-बार उसको याद आना, ऐसी चीज़ें हुई थीं एक ज़माने में, एक समय में, वो बहुत ही हृदय को छूने वाली होती हैं। तो ये मैं वहाँ उससे मैं एक ग़ज़ल गा रही हूँ, जो कि बहुत ही मतलब बेनी के भी करीब थी और मेरे किरदार के बहुत करीब है. नुक़ूश हसरत मिटा के उठना, नुक़ूश हसरत मिटा के उठना, खुशी का परचम उड़ा के उठना, नुक़ूश हसरत मिटा के उठना, खुशी का परचम उड़ा के उठना, मिला के सर बैठना मुबारक तराना है, फतह गा के उठना, मिला के सर बैठना मुबारक तराना है, फतह गा के उठना, नुक़ूश हसरत मिटा के उठना. ये गुफ्तगू नहीं है, ये गुफ्तगू नहीं है, बिगड़ने बनने का मरहला है, बिगड़ने बनने का मरहला है, धड़क रहा है फिजा का सीना, धड़क रहा है फिजा का सीना, के जिंदगी का मुआमला है,
नुपूश हसरत मिटा के उठना, खुशी का परचम उड़ा के उठना, मिला के सर बैठना मुबारक तराना है, फतह गा के उठना, नुपूश हसरत मिटा के उठना। सबसे पहला नाटक जो मैंने किया था पूर्वा के साथ, उसका नाम है लेडी संगीत, और जिसके बारे में पूर्वा ने भी कहा, उसमें रसिया को नार बनाओरी, जो अगेन इट्स ट्रेडिशनल सॉन्ग, ये छोटे-छोटे ही गीत हैं, गज़ल हैं, गाने हैं, जो हम नाटकों के बीच में गाते हैं, इसलिए इनका ड्यूरेशन बहुत कम है। तो रसिया को नार हमारे मतलब हमारा ये जो प्ले है लेडी संगीत, ये पूरा ख़त्म होता है इस जब हम जेंडर की बात करते हैं, तो एक माँ का, मैं जो माँ का किरदार प्ले करती हूँ, उसमें वो जो एक्सेप्टेंस है कि मैं अपने बेटे को, वो जिस तरह का भी है, ही इज़ डिफरेंट, और उसका जो भी प्रॉब्लम है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ फाइनली। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं उसको बचपन से एक तरह से देख रही होती हूँ कि हाँ, इनके इसके प्रॉब्लम एरियाज़ है, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ और मुझे उस बारे में बात नहीं करनी होती है। लेकिन जब वो इंसान अंदर ही अंदर, मेरा बेटा अंदर ही अंदर तड़प रहा होता है और मतलब ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो फाइनली फिर वो माँ का जो एक्सेप्टेंस है, वो हमारा पूरा नाटक एक इस गाने में ख़त्म होता है। और मतलब बेटी की शादी है, उसकी बेटी की शादी है, मतलब उसकी पोती की शादी है, दादी का रोल करती हूँ मैं, और उसमें फिर उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत लेयरिंग है, वो नाटक बहुत ही अच्छा है। और फिर हम ख़त्म करते हैं रसिया को नार बनाओरी, जो कि फिर मेरा एक्सेप्टेंस है मेरे बेटे के लिए, तो वो मैं गाना चाहूँगी, और ये आखिरी गाना है जो मैं पेश करूँगी। रसिया को नार बनाओ री, 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 रसिया को। लाल गुलाल द्रिगण विच अंजन, लाल गुलाल द्रिगण विच अंजन, बेंदी बार लगाओ री, बेंदी भार लगाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। कट लहंगा उर्माए कंचू की, कट लहंगा उर्माए कंचू की, चूनर शीस उड़ाओ री, चूनर शीस उड़ाओ री, रसिया को नार बनाओ 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 री, रसिया को। थैंक यू।
for giving us time. Thank you, Nivedita and Varun, for sharing your time with us and for singing this beautiful bandish that Harpreet has put to music. रोशी रोशी का जो हिंदी अंतरा है वो यून मोहम्मद ने ट्रांसलेट किया था हमारे लिए हिंदी में, और वो कश्मीर के हैं. और थैंक यू. रसिया कुनार बनावरी एक ऐसे नाटक से आता है जिसमें दादी और पोती का जो सेक्शन है वो हमेशा विवाद के उसमें खड़ा रहता है कि पोती पूछती रहती है कि ये बंदिश कौन सी नायिका को रिप्रेजेंट करती है, तो ये विरहिणी नायिका है, ये खंडिता नायिका है. और दादी उनको समझाती रहती हैं और वो लड़की नहीं गाना चाहती कोई भी ठुमरी या कोई भी बंदिश, लेकिन अंत में वो जब लड़ाई करती है अपनी दादी से और कहती है कि मेरे पापा के मन को समझने वाली कोई बंदिश नहीं है क्या आपके पास, सारी नायिकाओं की बंदिश है, तो मेरे पापा के मन के अंदर जो नायिका है वो आपके पास है कि नहीं है ऐसी कोई बंदिश. तो फिर वो ये बंदिश गाती है दादी क्लाइमैक्स में, और मतलब नाटक है वो. बट ये बंदिश बहुत खूबसूरती से निभाई भी निवेदिता ने, और वरुण का तो जो बजाता है तो समा बंद ही जाता है. So thank you guys, thank you so much for joining us today, and thank you to all the poets and the artists who graciously made themselves available to us at such short notice. And with that, we end this evening, and we hope you had a good time. And कभी और मजमा होगा, मेला होगा, हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट.